করি না, একদম পুরো মন দিয়ে চোখের জলে আরাধনা করি, তাই না? পুরো ভক্তির সঙ্গে আমরা আরাধনা করি, ভালো লাগে। কারণ ওতে ঈশ্বরের উপস্থিতি আমাদের মধ্যে আছে। কিন্তু তার থেকেও বহুমূল্য আরেকটা জিনিস রয়েছে, সেটি হচ্ছে ঈশ্বরের বাক্য। ঈশ্বরের বাক্যকে যদি যেভাবে আরাধনা আমরা করি, সেই সময় আমরা পুরো আত্মার সহকারে, আমরা মন থেকে, হৃদয় থেকে, চোখের জলের সহকারে সে আরাধনার প্রতি আমরা একটি কি করি, ঈশ্বরকে জাগা দিই আমাদের মধ্যে। ঠিক সেইভাবে ঈশ্বরের বাক্যকে যদি আমাদের মধ্যে জাগা দিয়েছি, শয়তান তোমার কাছে আসতে ডরাবে, শয়তান তোমার কাছে আসতে ডরাবে। কারণ যাহাদের কাছে ঈশ্বরের বাক্য নেই, কিন্তু ওরা প্রত্যেক দিন, প্রত্যেক সানডে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে আসছে। আর তারা কেমন প্রার্থনা করছে? আসছে, শুনছে, চলে যাচ্ছে, আসছে, শুনছে, চলে যাচ্ছে। এইটাতে ও বৃদ্ধি করতে পারছে না। ঈশ্বর চাইছে যে আমার সন্তান যারা রয়েছে, ওদের জন্য যে আমি সহায়ককে দিয়েছি, তারা সেই সহায়কের সঙ্গে একটা যে সম্পর্ক, সেই সম্পর্কটা তারা করতে পারছে না। সেই সম্পর্কটা গড়ার জন্য আমাদেরকে কি করতে হবে? ঈশ্বরের বাক্যকে আমাদের জীবনে গ্রহণ করতে হবে। যেভাবে আরাধনা আমি মন থেকে, হৃদয় থেকে, অন্তর থেকে গ্রহণ করছি এবং ঈশ্বরকে সে আরাধনা আমি তার বেদিতে রাখছি, ঠিক সেইভাবে যখন তোমার মধ্যে বাক্য থাকবে, তখন তুমি না বিপদে পড়বে, না বিমারি তোমার কাছে আসবে, না তোমার জীবনে কঠিন পরিস্থিতি আসবে, কারণ তোমাকে সে হাতিয়ার দেওয়া হয়েছে। হালেলুয়া। আমরা আজকে যে বাক্য শুনতে যাব, প্রত্যেকে বলুন, আজকে যে বাক্য ঈশ্বর আমাদেরকে দিয়েছে, তা আমার জীবন বদলে দেবে। কারণ এই বাক্য কোন মানুষের নয়, এই বাক্য স্বয়ং ঈশ্বর আমার জন্য বানিয়েছে। আর এই বাক্য দ্বারা আমি জীবন পাবো। ঈশ্বর ধন্যবাদ। আসুন আমরা বাক্যে যাওয়ার আগে একটি প্রার্থনা করি। পিতা, আমি জানি পিতা তুমি আমাদের মধ্যে রয়েছে। আমি জানি পিতা তুমি আত্মার স্বরূপে উপস্থিত রয়েছে। আমি জানি পিতা আজ এরা যে বাক্যকে গ্রহণ করবে, এর প্রত্যেকটি ভূমিকে তুমি তৈরি করেছো। আর এই ভূমিতে তোমার বীজকে আজ বুনা হবে, আর এই বীজ ফসল উৎপন্ন করবে তোমার রাজ্যের জন্য। পিতা, তাদের শোনার মতো আর্থিক কান দাও, চোখে তাদের যে আর্থিক চোখ, সেই চোখকে তুমি খুলে দাও, আর তোমার রাজ্যের জন্য করবে। ধন্যবাদ করো তোমার প্রাर्थना करना यीशु तुम्हारे नाम से, हालेलुया। आज का जो परमेश्वर का वचन है, वो वचन है आराधना, प्रार्थना और परमेश्वर का वचन। आज के जो वाक्य রয়েছে आराधना, प्रार्थना, ঈশ্বরের বাক্য, সেই বিষয়ে আমরা দেখব। আমাদের জানো আর্থিক যে জীবন রয়েছে আর শারীরিক যে জীবন রয়েছে, শারীরিক জীবন দিয়ে আমরা এই জগতের মধ্যে কাজ করতে পারি, কিন্তু আর্থিক যে জীবন রয়েছে তা হচ্ছে ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা আমরা সেই কাজকে নিপটাতে পারব। আর তার জন্য আমাদের জীবনে চাই ঈশ্বরের বাক্য। হালেলুয়া। আমরা ধ্যান দিয়ে আমরা আজকের বাক্য শুনবো, কারণ ঈশ্বর এখানে উপস্থিত রয়েছে। আর আপনাকে সেই এই পৃথিবীর মধ্যে সেই দায়িত্ব দিয়েছে যেন আমার সন্তানরা ফুলে ফলে এবং পৃথিবীতে বাড়তে যায়। হালেলুয়া। আমাদের শরীরের মধ্যে তিনটি অংশ রয়েছে, একটি হচ্ছে দেহ, একটি হচ্ছে প্রাণ, আরেকটা হচ্ছে আত্মা। দেহ, প্রাণ আর আত্মা, এই তিন রকমের কাজ রয়েছে।
দেহ আত্মার উল্টো পথে চলে, কিন্তু আত্মা ঈশ্বরের পথে চলে। ঠিক আছে? তো দেহ যে রয়েছে সেটি হচ্ছে আমাদের এই বাইরের অংশটা, আর এই যে প্রাণ যে রয়েছে সেই প্রাণটি আমাকে চলাফেরা করতে সাহায্য করে। কিন্তু আত্মা যেটা রয়েছে সেটি ঈশ্বরের কাছ থেকে আমরা পেয়েছি। আর সেই আত্মা এই পৃথিবীর মধ্যে না কোনো পশুদেরকে দেওয়া হয়েছে, না পাখিদেরকে দেওয়া হয়েছে, বা যত ধরনের প্রাণী বা জীব রয়েছে কাউকে দেওয়া হয়নি, একমাত্র মানুষকে দেওয়া হয়েছে। কাকে দেওয়া হয়েছে? আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে। কে দিয়েছে? আমাদের ঈশ্বর আমাদেরকে সেই আত্মা দেওয়া হয়েছে। এই আত্মা কেন দেওয়া হয়েছে জানো? কারণ আমরা একটা বাক্য দেখব, जोहन का 4:24 पद, यह ना उसका 4 और 24 पद, वहां पे लिखा है परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से करे। हालेलुया। यहाँ पे जो वचन है, परमेश्वर क्या है? वो आत्मा है, और उन्होंने हमारे बीच में एक आत्मा को दिया जो हमारे अंदर है। हमने क्या सुना कि हमारे बीच में क्या है? शरीर है और प्राण, मतलब जीवन और आत्मा। और यहाँ पे कह रहा है परमेश्वर के वचन के परमेश्वर आत्मा है। अगर परमेश्वर के साथ हमें बातें करना है तो हमें आत्मा में आना। किसमें आना है? आत्मा में आना है। और आत्मा की धारा हम परमेश्वर के साथ बातें कर सकते हैं। आदम जो था, जब आदम को बनाया परमेश्वर ने, तो आदम के साथ परमेश्वर आता था और आदम से बातें करता था। आज भी परमेश्वर हमारे बीच में आता है, लेकिन वो आत्मा में आता है। और आत्मा में जब वो आता है, पर हम शरीर में रहते, मिल नहीं पाते उससे। क्या करें? मिल नहीं পাতে। ঈশ্বরের সঙ্গে আমরা একটি সম্পর্ক গড়তে পারি না, কারণ আমরা এই পৃথিবীর মধ্যে শরীরের মধ্যে অনেকটা চলে গেছি, যার জন্য ঈশ্বরের সঙ্গে আমরা সম্পর্ক গড়তে পারছি না। তো ঈশ্বর হচ্ছে আত্মা, এবং সে আত্মা আমাদের মানুষের মধ্যে ঈশ্বর দিয়েছে, যাতে সেই আত্মা দ্বারা ঈশ্বরের সঙ্গে আমরা এক হতে পারি। হালেলুয়া। ঈশ্বর বলেছে তোমরা হচ্ছে প্রত্যেকে আমার সন্তান, আর আমার সন্তানদেরকে পৃথিবীর মধ্যে আমি রেখেছি, আর এই পৃথিবীর মধ্যে যত কিছু জিনিস রয়েছে আমি সমস্ত কিছু আমার সন্তানদেরকে আমি দিয়ে দিয়েছি, আর তারা তার উপর কি করো? কর্তৃত্ব করো, অর্থাৎ অধিকার করো। তো ঈশ্বর আমাদেরকে এগুলো দিয়েছে, ঠিক আছে, এটার মধ্যে আমরা রয়েছি, ঠিক আছে, কিন্তু ঈশ্বরকে সঙ্গে সম্পর্কটা আমাদের দূরে হয়ে গেছে, কারণ আমরা এই জগতে জিনিসগুলোকে ভালোবেসে ফেলেছি, সুন্দর সুন্দর জিনিসগুলিকে ভালোবেসে ফেলেছি, আর সেই সুন্দর জিনিসগুলোকে আমরা কি করে নিয়েছি? আপন করে নিয়েছি। এই পৃথিবীতে এমন এমন মানুষ রয়েছে, যেমন কেউ যদি একটা গাড়ি কিনে তো গাড়িটাকে অনেক ভালোবাসে, কেউ যদি একটা সুন্দর বাড়ি বানায় সেই বাড়িটাকে অনেকদিন ভালোবাসে। সে কি করে? আমার বাড়ি রয়েছে, বাড়িটির প্রতি সে অহংকার করবে, কিন্তু সে কি সারা জীবন এখানে থাকবে? তার কাছে গাড়িটা যে আছে, গাড়িটা কি তার সারা জীবন তার সঙ্গে থাকবে? কিন্তু ঈশ্বর বলছে যে আমাতে থাকে, আত্মাতে যে থাকে, সে সারা জীবন জীবিত থাকবে। হালেলুয়া। সে সারা জীবন জীবিত থাকবে, সে মরে গেলেও আবার সে কি হবে? জীবিত থাকবে। কার সঙ্গে থাকবে? ঈশ্বরের সঙ্গে থাকবে। তো আমাদেরকে ঈশ্বরের সঙ্গে প্রথমে আসতে গেলে যেভাবে আমরা আরাধনা করার সময় পুরো ভক্তি সহকারে অন্তর দিয়ে, হৃদয় দিয়ে, চোখে জল দিয়ে আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি, আরাধনা করছি, তখন ঠিক সেই ভক্তি সহকারে আমরা করছি। ঠিক সেভাবে আমরা যদি ঈশ্বরের বাক্যকে জীবনে গ্রহণ করি, ঠিকভাবে ঈশ্বরের বাক্য মতো আমি যদি জীবন যাপন করি, ঈশ্বরের বাক্যকে শুনে আমি ঈশ্বরের পথে যদি চলি, তো আমার জীবনে আমি কি দেখবো? উন্নত দেখবো। কারণ ঈশ্বর তার বাক্যে বলেছে
আমার আজ্ঞাকে যে ভালোবাসে আমি তাকে ফলবান করি। কি করি? ফলবান করি। অর্থাৎ ও আমাদেরকে পৃথিবীর সমস্ত ভালো এবং মঙ্গল জিনিস তিনি আমাদেরকে দেন। হালেলুয়া। তো আমাদের দেহ, প্রাণ এবং আত্মা যে রয়েছে তার মধ্যে আমাদের সেই আত্মা ঈশ্বর দিয়েছে এবং সেই আত্মা দ্বারা ঈশ্বরকে আমরা প্রশংসা করতে পারি। এখানে বলছে परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके खोजने वाले, उसकी आराधना करने वाले, उसके पास आने वाले आत्मा में आए और आत्मा में उसके साथ बातें करें। हालेलुया। और तब परमेश्वर को वो पाएगा भी और उसकी जो जिसलिए वो परमेश्वर के पास आते हैं वो उनका संपूर्ण होगा। हालेलुया। तो हमें जो आत्मिक जो युद्ध है, आत्मिक जो युद्ध है वो आत्मा में है। और आत्मा क्या है? जो परमेश्वर के वचन है, उस वचन को हम लोग अगर जीवन में नहीं लेंगे तो आत्मिक में हम लोग युद्ध नहीं कर सकते। एक जो सैन्य के एक सोल्जर को जब बॉर्डर में भेजता है तब उसको क्या देते हैं? अस्त्र, गन दिया जाता है। और उसको गन तो दिया गया है, पर जब उसके शत्रु उनके मारने के लिए है और वो गन पकड़ के रहे तो मारेगा, मार जाएगा शत्रु के हाथों से। लेकिन और उस गन को अगर चलाएगा तो शत्रु को वो मारेगा। हालेलुया। शत्रु को वो मारेगा। ठीक आत्मिक जो हमारा जीवन है, हम लोग परमेश्वर के वचन को अगर अपने जीवन में भरोगे और शैतान तुम्हारे बीच में आएगा और वही वचन जब तुम फायर करोगे उस शैतान और उन दुष्ट शक्ति के ऊपर, तब वो तेरे पास टेक नहीं पाएगा। परमेश्वर ने खुद कहा जो काम मैंने किया है मेरे संतान भी वही काम करेगा। हालेलुया। जो काम मैंने किया है मेरे संतान भी वही काम करेगा। हालेलुया। और एक हम वचन देखेंगे यहाँ पे परमेश्वर खुद कहा है और वही वचन हम देखेंगे। और ये वचन है जिसाया उसका 55 और 11 पद। जिसाया उसका 55 और 11 पद। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। हालेलुया। परमेश्वर वचन जो है, ये वचन में कह रहा उसी प्रकार से मेरा वचन जो है, वो वचन मेरे मुंह से निकला कि आकाश हो तो आकाश हो गया, पृथ्वी हो पृथ्वी हो गया, उजाला हो उजाला हो गया, पेड़ पौधे हो पेड़ पौधे हो गया। मुंह से निकला शब्द और वैसा ही हुआ। मुंह से जो निकलेगा परमेश्वर के संपर्क में जो आता है ना, परमेश्वर के साथ एक बन जाता है, जो मुंह से वो निकलेगा वो वैसा ही होगा। हालेलुया। क्योंकि उसका संपर्क जो हो गया वो परमेश्वर के साथ आत्मा में हो गया। और परमेश्वर कहता है मेरे संतान वही काम करेगा जो मैंने किया। परमेश्वर ने कहा लाजर को तू जिंदा हो जा, तू लौटा, तू उठो और निकल कब्र से, वैसा ही हो गया। आज तुम भी वही काम कर सकते हो, लेकिन बिना वचन के नहीं कर पाओगे। वचन रहेगा तो वही कर पाओगे। और परमेश्वर के साथ प्रार्थना आराधना जब तुम सच्चाई से करोगे तब तुम आत्मा में आओगे और आत्मा में जब आओगे तो परमेश्वर तुम्हें चलाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने खुद कहा है देख मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ने वाला हूं, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा और दे चुका है, और वह पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आने के लिए हमें परमेश्वर के साथ समय बिताना। हालेलुया। मैं एक कहानी बताऊं, सच्चा कहानी। बोल दिनाकरण का पिता डीजे एस दिनाकरण। डीजे एस दिनाकरण वो जब वो उसकी माता पिता शादी हुई, उसकी जो बच्चे हुआ और डीजे एस दिनाकरण था, और वो जब 14 और 15 साल का हुआ तब वो
देखा कि हमारे जीवन में बहुत कठिन परिस्थिति है और बहुत ही दुख भरी कहानी है, तब डीजे दिनाकर ने क्या किया? वो सुसाइड करने के लिए रेल पटरी में जा रहा था और रेल आने ही वाला था। तब उसका ही एक मामा था, तो उन्होंने उसको एक संदेश दिया कि देख, तेरा जो जीवन है ये गंवाना नहीं, ये जीवन तुमको परमेश्वर ने दिया, तुम उसको दे दो जिसने तुमको दिया। तो डीजे दिनाकर ने किया, अगर सच में परमेश्वर है तो मैं उस परमेश्वर के सामने अपने आप को सौंप देता हूँ। और उसी रात उन्होंने प्रार्थना किया कि प्रभु, अगर तुम सच में हो तो मेरे को आज ही रात दर्शन दो और मुझे दिखाओ कि अगर तुम सच में परमेश्वर हो तो मुझे आज ही दर्शन दो और मेरे जीवन से इस परिस्थितियों को हटा दो। और पूरे विश्वास के साथ ये ग्रहण कर लिया था उनके पास से कि परमेश्वर एक है और वो है यीशु मसीह। और यीशु मसीह के सामने वो डीजे दिनाकर अपने आप को बोला, प्रभु को सामने वो बोला कि आज ही मुझे दर्शन दो और आज रात ही मेरे को दर्शन दो। और परमेश्वर ने उसे उसी रात दर्शन दिया और उसे कहा कि मैं तुम्हें अपने राज्य के लिए बढ़ाना चाहता हूं। और ठीक वैसे ही परमेश्वर ने उसको बढ़ाया। और आज जब वो प्रार्थना करने लगा कि प्रभु तू सच में है, मैं ये मान लिया हूं, पर मैं जितना हूं उससे इस भारत में मैं आपको वचन को फैला नहीं सकता, मुझे और कुछ दीजिए। तो परमेश्वर ने उसको और दिया, क्या दिया? आत्मिक आत्मा दिया। और आत्मिक आत्मा से जब वो प्रचार करने लगा था तो कठिन से कठिन, चट्टान से चट्टान जो दिल रहता था, ना मानने वाला दिल रहता था, दारू पीने वाला दिल रहता था और दुश्मन करने वाला दिल रहता था, वो दिलों को उन्होंने बदल दिया था। हालेलुया। और वो डीजे दिनाकर आज हमारे भारत में ऐसी प्रचार किया परमेश्वर के वचन को, जो उनके ओर से बहुत ही लोग आज जीवन पाया है। हालेलुया। ठीक वैसे ही हमें भी परमेश्वर के पास आना है, परमेश्वर के पास आके हमें प्रार्थना करना है, प्रभु मैं आपके लिए एक जीवन देना चाहता हूँ, प्रभु आप हमें चलाइए, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, आप हमें चलाइए। जब आत्मा में हम आते हैं और प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर वो सुनते हैं। हालेलुया। तो डीजे दिनाकर जो था वो सच्चे मन था और वो सच्चे मन से परमेश्वर के वचन को ग्रहण करता था और वचन को लेके वो चलता था। आज अगर हम यहाँ पे सुन रहे हैं परमेश्वर के वचन को और जीवन में ग्रहण करेंगे और उस तरह चलेंगे तो हम बढ़ेंगे और परमेश्वर हमें बढ़ाएगा। हालेलुया। हालेलुया। मार्क 11:24 मार्कुस 11:24 এইজন্য আমি তোমাদিগকে বলি, যাহা কিছু তোমরা প্রার্থনা ও যাচ্ছা করো, বিশ্বাস করিও যে তাহা পাইয়াছ, তাহাতে তোমাদের জন্য তাহাই হইবে। তার উপরে 23 আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, যে কেহ এই পর্বতকে বলে উপড়িয়া যাও আর সমুদ্রে গিয়া পড়ো এবং মনে মনে সন্দেহ না করে, কিন্তু বিশ্বাস করে যে যাহা বলে তাহা ঘটিবে, তবে তাহার জন্য তাহাই হইবে। हालेलुया। और मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ और जा समुद्र में पड़ और उसके मन में संदेह ना करे तो वो वैसा ही होगा। हालेलुया। पहाड़ क्या है हमारे जीवन में? रोग, बीमारी और कठिन परिस्थिति और बहुत सारा कठिन से कठिन परिस्थिति जो आती है हमारे बीच में, ये है पहाड़ी।
हालेलुया। और इस पहाड़ को हटाने के लिए हमें परमेश्वर के वचन को जरूरत है। इस पहाड़ को हम लोग शरीर से हटा नहीं सकते, शरीर की बल से हटा नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर के वचन से हम हटा सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन से हम हटा सकते हैं। यहाँ पे लिखा है परमेश्वर ने कि तुम अगर पहाड़ से भी कहो जाके समुद्र में गिर, और वैसा ही होगा। उस दिन एक इंसान के अंदर और बहुत सारी दुष्ट शक्ति थी, और उन्होंने प्रभु यीशु ने उसको कहा तू जा और समुद्र में गिर, और ठीक वैसा ही उसके शरीर से निकला और जाके स्वर्ग में आया और जाके समुद्र में गिरा। हालेलुया। वैसे ही पहाड़ हमारे बीच में, हमारे जीवन में आते हैं। हो सकता है वो शराब की हो सकता है कोई रोग और बीमारी हो सकता है कोई गरीबी हो सकता है कुछ और भी बहुत सारे। हालेलुया। लेकिन वो सब हटाने के लिए परमेश्वर की वचन को हमें जरूरत है, और परमेश्वर के वचन जब हमारे बीच में रहेगा तभी हम उससे लड़ सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हमारा फादर जो है, फादर ने उस दिन हम लोगों के बीच में एक गवाही दिया था कि हमारे पास कुछ भी पैसा नहीं है, कुछ भी पैसा नहीं है, लेकिन हमें ये बनाना है, ये बनाना है। परमेश्वर के पास प्रार्थना किया, परमेश्वर के साथ प्रार्थना करके परमेश्वर के सामने रखा गया। परमेश्वर ने उसी प्रार्थना को सुन ली और वैसा ही हो गया। हालेलुया। ये एक पहाड़ था, और इस पहाड़ की हम लोग आत्मिक जहां में जब प्रार्थना किया सभी मिल के, तब ये संपूर्ण हुआ और परमेश्वर ने इसे संपूर्ण किया। हालेलुया। हालेलुया। उस दिन और एक गवाही दिया था कि मैंने वादा किया है उस इंसान के साथ के हम एक हफ्ते के अंदर पैसा लगा देंगे, लेकिन हमारे पास पैसा एक भी नहीं है, एक भी पैसा नहीं है, लेकिन एक हफ्ते के अंदर उसे लौटाना है। और फादर ने कहा कि परमेश्वर उसके लिए बंदोबस्त करेगा। हालेलुया। परमेश्वर उसके लिए बंदोबस्त करेगा। और ये प्रार्थना था, और परमेश्वर की संतान के मुंह से जैसा ही निकला ये सब वैसा ही जीवन में लागू हुआ, वैसा ही जीवन में लागू हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वो फादर परमेश्वर के साथ एक आत्मा बन चुका है, और परमेश्वर का संतान वही करेगा जो परमेश्वर ने किया, और वैसा ही मुंह से शब्द निकला वो हो गया। हालेलुया। आज आपको परमेश्वर ने चुना है, आपके जीवन में भी वैसा ही हो, आपके जीवन में भी ऐसा ही हो। परमेश्वर ने आप लोगों को चुना है, और आप लोग वो हथियार को उठाए। जैसे सोल्जर जो बॉर्डर में होता है वो हथियार को टांग के रखता है, जब भी शत्रु आए मैं उसके ऊपर टांग दूं, वैसे ही हथियार तुमको उठाना है, वो है परमेश्वर के वचन। हालेलुया। और उस वचन के बिना तुम आत्मिक जहान में, आत्मिक शक्ति में लड़ नहीं सकते। तुम दुख भर की कहानी सुनाते जाओ एक दूसरे को, मेरे को ये हो गया, मेरा वो हो गया, मेरे पड़ोसी ने मेरे दूसरे के साथ ये कर दिया, वो कर दिया। अरे तुम आत्मिक जहान में रहोगे तो देखो दुश्मन तुम्हारे पास नहीं आ पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें आत्मिक जहान में आने के लिए परमेश्वर का वचन चाहिए। आज दुनिया में देखो जो लोग परमेश्वर की साथ नहीं है, उन लोगों का बच्चा क्या बिगड़ रहा है। अभी गवाही दिया ना, मेरे बातें नहीं सुनता, वो लोग पैसा कमा रहा, पैसा उड़ाते रहे, कोई काम का नहीं, ना माता पिता को देखता है, ना घर को देखता है, ना बच्चे को देखता है, उड़ा देता है। क्यों उड़ा देता है? परमेश्वर का साथ उन लोगों का रिश्ता नहीं है, परमेश्वर के ज्ञान नहीं है, नष्ट हो गया। लेकिन हम लोग परमेश्वर के ज्ञान हम लोग पा चुके हैं, परमेश्वर के साथ आ चुके हैं, और जब परमेश्वर के साथ आते हैं परमेश्वर हमारे बीच में होता है। उन्होंने कहा मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा, कभी न त्याग करूंगा, मैं दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और उसका वचन जो कहता है वो वैसा ही होगा।
हालेलुया। और ये वचन जब तुम सब ग्रहण करने लगोगे, परमेश्वर के वचन ने यहाँ पे लिखा है कि ऐसा हो सकता है मेरे शत्रु दाहिने और मेरे शत्रु आगे 1000 करेंगे, मेरे दाहिने 10,000 करेंगे, पर मुझे कोई कुछ कर नहीं सकता। लिखा है मैं परमेश्वर की संतान हूँ। स्वर्गदूत परमेश्वर ने स्वर्गदूत को आज्ञा देगा और वो मेरे आगे पीछे रहेगा, मुझे कुछ नहीं हानि होगा। हालेलुया। लिखा है शास्त्र में। और इस हथियार को जब हम लोग उठाएंगे, तब इस हथियार को जब चलाएंगे, तब आर्थिक जहान में ना कोई मेरा शत्रु आएगा, ना कोई बीमारी आएगा, ना कोई कठिन परिस्थिति आएगा, और ना ही कोई मेरे शत्रु मुझे मार सकता है। हालेलुया। हमारा शत्रु कौन है? हमारा शत्रु कौन है? हमारा पड़ोसी, हमारा जो अगल बगल रहता है, वो लोग हमारा शत्रु है? नहीं, शत्रु एक शक्ति है, अंधकार की शक्ति। और उस अंधकार शक्ति को शरीर चाहिए जो परमेश्वर का है। उस शरीर में वो जाता है, एक दूसरे के हिंसा का आत्मा जिसे कहता है, एक दूसरे के साथ जलता रहता है, एक दूसरे के साथ हिंसा रहता है। ये एक आत्मा है। नशा तो चलो जाके हम थोड़ा पी लेंगे तो कुछ नहीं होगा, ये एक आत्मा है। नशे वाला आत्मा, हिंसा वाला आत्मा, लगाने वाला आत्मा, ये एक आत्मा है। और इस आत्मा को बहुत लोग शिकार हो चुका है। और ये आत्मा तब नहीं आएगा जब तुम प्रार्थना करोगे। जब तुम प्रार्थना करोगे तब तुम्हें ये आने नहीं देगा। तुम्हारे जीवन में जो बीमारी आता है, ये अंधकार की शक्ति, ये तुमको लाता है। लेकिन जब तुम्हारे पास वचन रहेगा, हथियार रहेगा, हथियार, और ये हथियार को जब चलाओगे, तब तुम्हारे बीच में ना कोई शत्रु आ सकता, ना कोई ठहर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा कि तुम बड़ी से बड़ी पहाड़ को जब तुम कहोगे तू जा और समुद्र में गिर, वैसा ही होगा। ठीक वैसे ही आज परमेश्वर के वचन को जब हम लोग लेंगे और चलाएंगे, तब वैसा ही हमारे जीवन में काम होगा। हालेलुया। लेकिन अगर हमने कहा कि ओ इंसान मेरा बहुत शत्रु है, मेरे को देखता है तो गाली देता, मर जाता है, ऐसा नहीं होगा। हालेलुया। वैसा नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर किसी को मारेगा नहीं। परमेश्वर किसी को मारेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर वो भी परमेश्वर के साथ है। लेकिन उसके पीछे जो एक आत्मा है, वो उसको चला रहा है, रिमोट कंट्रोल की तरह वो चला रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं तुमसे, और 26 पद, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो, अगर तुम प्रतीति करो, विश्वास कर लो, तो तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाएगा। हालेलुया। हम लोग प्रार्थना करते, कोई देखते हैं कि अरे इसके पास प्रार्थना किया काम नहीं हुआ, चलो उसके पास जाते, उसके पास प्रार्थना करेंगे, अरे इसके पास भी नहीं हुआ, चलो उसके पास जाते, प्रार्थना करेंगे, चंगा होगा। वैसा नहीं, तुम्हारे अंदर जो है ना विश्वास, उस विश्वास को परमेश्वर देखता है। विश्वास को तुम्हारे अंदर जो विश्वास है, उस विश्वास को देखता है। कितने विश्वास से परमेश्वर के पास तुम आए हो, और कितने विश्वास से परमेश्वर की संतान ने कहा उसको तुमने अपनाया हो, और तुम्हारे जीवन में वैसा ही घटेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कह रहा है कि तुम संदेह ना करो। प्रार्थना में तुम जो कुछ भी मांगा, तुम संदेह बिल्कुल भी मत करो, लेकिन तुम ये मान लो कि बेटे ये प्रार्थना परमेश्वर ने रखा है, परमेश्वर हमें देगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मांगो तुम्हें दिया जाएगा, तुम मांगते जाओ तुम्हें देंगे, लेकिन परमेश्वर के सामने मांगो, इंसान के सामने नहीं। हालेलुया। अपने दुख भरी कहानी इंसान को मत सुनाओ, अपने पड़ोसी को मत सुनाओ, लेकिन परमेश्वर को सुनाओ। देखो परमेश्वर सुनेगा और तुम्हें उससे निकालेगा, भाई उस समस्या से तुम्हें हल भी करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमें परमेश्वर के साथ चलने के लिए आत्मिक चाहत में परमेश्वर के साथ एक हमारा रिश्ता होना चाहिए, और अगर रिश्ता नहीं होगे तो हमारे जीवन में हम बढ़ नहीं पाएंगे।
हालेलुया। और रिश्ता को बनाने के लिए हमारे जीवन में प्रार्थना चाहिए, आराधना चाहिए, परमेश्वर का वचन चाहिए, और ये सब जब रहेगा तब हम आत्मिक जहान में हम लोग जाएंगे। परमेश्वर ने कहा, देखो मैं तुम्हारे लिए एक द्वार को खोल के रखा हूँ। ये है परमेश्वर का वचन जो द्वार है तुम्हारे लिए, और ये वचन को जब तुम अपने अंदर लोगे तो उस द्वार में से तुम होके जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। और इस द्वार में जब तुम जाओगे तब तुम्हें परमेश्वर मिलेगा। हालेलुया। और परमेश्वर जब तुम्हें मिलेगा तब तुम्हारे जीवन में ज्योति आएगा, और ज्योति जब आएगा तुम्हारे जीवन में अंधकार की शक्ति ना ठहर पाएगा, क्योंकि अंधकार को परमेश्वर ने हारा चुका है। हालेलुया, हालेलुया। और अंधकार तुम्हारे बीच में नहीं रह सकता, क्योंकि एक अंधकार जगह में जब हम लाइट को जलाएंगे तो वहां पे लाइट की रोशनी रहेगा या अंधकार रहेगा? लाइट की रोशनी दिखाई देगा, तो उस जगह में लाइट की रोशनी से उजाला हो जाएंगे, और उजाला जब होंगे वहां पे अंधकार नहीं रहे। परमेश्वर का वचन तो ऐसा ही है, जब तुम्हारे अंदर जितना आता जाएगा, जितना आता जाएगा, जितना आता जाएगा, जितना आता जाएगा, तुम बदलते जाओगे, सच को जानोगे, और तुम सच तुम्हें परिवर्तन करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमें परमेश्वर के वचन जो है वो जब हम ध्यान से सुनेंगे, परमेश्वर के वचन जो है वो हम अपने जीवन में लेंगे, तब हमारे जीवन बदलता जाएगा। वो वरना वैसा ही होगा। एक बच्चे को देखो, एक छोटा बच्चा वो स्कूल आता है, जाता है, स्कूल आता है, जाता है, स्कूल आता है, जाता है, वो बढ़ता बढ़ता एक बड़ा एक स्कूल में आते हैं। हालेलुया, एक ऊंचा क्लास में आते हैं। लेकिन वो ऊंचा क्लास में कब आता है? जब वो अच्छे से एग्जाम देते हैं, अच्छे से एग्जाम में लिखते हैं, और अपने परीक्षा में जो उसको मिलता है उसका आंसर वो देता है, तब वो दूसरी क्लास में जाते हैं। ठीक वैसे ही हमारे जीवन में एक परीक्षा आता है, वो है कठिन परिस्थिति। हो सकता है हमारे जीवन में आज कोई बड़ा एक किसी का कुछ हो गया और परमेश्वर को बुलाया, परमेश्वर ने आंसर नहीं दिया, तो मेरे परमेश्वर को छोड़ दो, परमेश्वर को छोड़ दो। ये है फेल हो चुका था, परीक्षा में तू फेल हो चुका। लेकिन अगर तुम उस परिस्थिति में से होके गुजरोगे तब तुम ऊंचाई में जाओगे। हालेलुया, तब तुम ऊंचाई में जाओगे, और ऊंचाई में जब जाओगे वो उसमें तुम्हें बढ़ाएगा, और वो है पवित्र आत्मा जो तुम्हें बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमें परमेश्वर के वचन में अगर बढ़ना है तो पहले हमें जीवन में एक समय को, हमारे जीवन में एक समय को देना होगा परमेश्वर को। आदम के साथ जब शाम होता था तब परमेश्वर आता था, आदम तू कहाँ है? आओ मैं तुम्हारे साथ बातें करना चाहता हूँ। वैसे ही हमारे जीवन जब रोज हम प्रार्थना करते हैं, रात को हो या सुबह का हो या शाम का हो या फिर दिन के बीच में हो, हम जो प्रार्थना करते हैं, जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं, तब वहां पे परमेश्वर का आत्मा आपके पास वो आके रहता है। हालेलुया, परमेश्वर की आत्मा आपके बीच में आके वो रहता है। मत्ती उसका 6 और 6 निकालिए, वहां पे लिखा है कि परमेश्वर की आत्मा आपके बीच में रहता है या नहीं। मत्ती उसका 6 और 6 पर। परंतु जब तुम प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुम्हें प्रतिफल देगा। हालेलुया। पिता कैसे रहते? गुप्त में रहता है। यहाँ पर भी पिता है, आपको देख रहा है, आपको किस हिसाब से आप प्रार्थना को सुन रहे हैं, किस हिसाब से वचन को सुन रहा है, अपने जीवन में भर रहे हो, वो देख रहा है, पर वो गुप्त में, उसे हम देख नहीं पाएंगे। जब देखेंगे जब हम आत्मा में आएंगे, सच्चाई के साथ। जब आराधना करता है बहुत कोई लोग रहता है कि आंसुओं के साथ परमेश्वर के सामने वो आराधना कर रहा है, तो अपने अंदर आत्मा को महसूस कर रहा है कि परमेश्वर की आत्मा यहाँ पे हमारे साथ है। लेकिन वो जब आता है तब वो आपके साथ वो वास करता है।
यहाँ पर भी है परमेश्वर की आत्मा, मतलब मेरे पिता जो गुप्त में है वो है हमारे पास और रहता है हमारे बीच में, और वो हमारी जो प्रार्थना होती है, हमारी जो आराधना होती है, वो हर एक चीज वो सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। डीजे इस दिनाकर ने कहा, प्रभु मैं इस आत्मिक जहां में आपके नाम को मैं भारत में फैलाना चाहता हूँ, लेकिन फैलाने के लिए मैं क्या करूं? बहुत रो रहा था, बहुत रो रहा था सर, और अपने रूम में गया और रो के परमेश्वर के साथ कह रहा था, मुझे समर्थ दो, मुझे समर्थ दो कि आपके नाम को मैं इस भारत में, पूरे भारत में फैला सकूं, मुझे समर्थ दो। ऐसा वो प्रार्थना करता था रो के। एक दिन अचानक परमेश्वर की ज्योति उनके बीच में आई और उस ज्योति ने परमेश्वर को देखा और उन्होंने कहा, हे मेरे पुत्र, तुम क्यों रो रहे थे? तेरे जो आंख से पानी निकलकर टपक रहा था, मैंने उस पानी को देखा कि कितनी बार तुम्हारी आंख से पानी टपका है। हालेलुया। और आपने जो प्रार्थना में मांगा है, मैं तुम्हें वो दूंगा और तुम पूरे भारत में मेरे नाम से प्रचार करने लगोगे। और वैसा ही हुआ उसके जीवन में, और उनकी तरह बहुत लोग आज नया जीवन पाया है, परमेश्वर की नाम को जाना है, परमेश्वर कौन है उसको, उसका पहचान क्या है, वो आज बहुत लोग जान चुका है उसके माध्यम से। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे बीच में वैसा ही प्रार्थना होना चाहिए, वैसा ही अपने आप को परमेश्वर को अधीन में आना चाहिए। जब हम गाना गाते हैं तो हमारे पास में कोई बैठा है, मैं उसके लिए गाना गा रहा हूँ, मत गाओ उनके लिए। तुम परमेश्वर की संतान हो, परमेश्वर के लिए गाओ। मेरे पड़ोसी के घर में कोई है और मैं प्रार्थना करो, मैं उनको सुना रहा हूँ, देख मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मत ऐसा करो, क्योंकि शैतान ने अहंकार किया था तब उसको सर से गिराया था। तुम अपने अहंकार किसी को मत दिखाओ, परमेश्वर के लिए करो। या फिर तुमको कहा है, फादर ने कहा है कि तुमको आज चार्ज में आना है, तुम चार्ज में चलो तब तुम आ रहे हो, ऐसा ना करो, लेकिन तुम अपने आप को ऐसा तैयार करो कि परमेश्वर के साथ तुम समय बिताओ। परमेश्वर की उपस्थिति में जब आओ तब परमेश्वर के कहो कि प्रभु मैं तुम्हारे पास आऊंगा और मैं तुम्हारे लिए चलूंगा। हालेलुया। तब तुम्हें परमेश्वर वो क्या करेगा? पढ़ाएगा। हालेलुया। परमेश्वर एक माध्यम है, किसी को भेजता है आपके पास, चलो आप परमेश्वर के पास। किसी को भेजता है, कोई बीमार है तो उसके पास परमेश्वर को किसी इंसान को, किसी संतान को भेजता है कि तुम लोग जाओ वहां पे, तुम्हारे ये वाला चीज ठीक हो जाए। वो किसी को भेजता है, वो माध्यम यूज करता है। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर का पुत्र आया था तब स्वर्गदूत को भेजा, मरियम को माध्यम किया और उसी माध्यम से परमेश्वर की संतान इस पृथ्वी पे आया और वो अपना काम किया, हमें हर एक पापों से छुड़ाया, हर एक बीमारी से छुड़ाया। ये एक माध्यम था। हालेलुया। ठीक वैसे ही हमारे जीवन में जो परमेश्वर जो एक दूसरे के पास जो परमेश्वर का सुसमाचार भेजता है, परमेश्वर के संतानों को भेजता है, ये परमेश्वर की इच्छा है। तब जाकर वो संतान तुम्हारे पास गया और तुमको बोला कि परमेश्वर के पास आओ, परमेश्वर के पास प्रार्थना करो, तब तुम आते हो और तुम्हें वो छुटकारा देता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, हे परिश्रम करने वालों, हे दुनिया में घूमने रहे वालों जो बीमारियों से परेशान हो, घूम के थक गए हो, बीमारियों से थक गए हो, तुम लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो विश्राम देना चाहता है आपको। हालेलुया। तो वैसा जब हम परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के संतानों को एक दूसरे के पास जब भेजता है परमेश्वर, तो ये एक माध्यम है जिसके द्वारा आप परमेश्वर को जानते हो। हालेलुया। हमें आराधना जब करना है तो आराधना का मतलब होता है जब हम गान कर रहे, आराधना कर रहे पूरे मन और आत्मा से, तब हम परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में लाते हैं। हालेलुया। ये आराधना की माध्यम से। और प्रार्थना क्या है? प्रार्थना परमेश्वर के साथ बातें करते हैं। प्रार्थना मतलब परमेश्वर के साथ बातें करना,
परमेश्वर की उपस्थिति में हम आराधना के अंदर से आ गए, लेकिन आप प्रार्थना करें, मतलब परमेश्वर के साथ हम बातें करें, अपनी प्रार्थना को परमेश्वर के सामने सुना रहे, परमेश्वर को बोल रहे, परमेश्वर सुन रहे और उसका वो हमें उत्तर देगा। और वचन जो है, ये वचन परमेश्वर का वचन जो है, इस वचन के द्वारा हम प्रार्थना को मजबूत कर सकते हैं। हालेलुया। क्या कर सकते हैं? मजबूत कर सकते हैं। अगर दो लट्ठी को ऐसे रखा और थोड़ी सी रस्सी दी और फेंक दिए, वो बाद में अलग अलग हो सकता है, लेकिन दो लट्ठी को अगर मजबूत किसी तार से बांधा और रख दिया, वो कभी अलग नहीं हो सकता। ठीक वैसे ही हमारा जो प्रार्थना है, प्रार्थना में अगर परमेश्वर के वचन के द्वारा हम प्रार्थना करेंगे तो उसमें एक सामर्थ्य उत्पन्न होगा परमेश्वर के वचन से, क्योंकि उसके वचन ने कहा, मेरे मुंह से निकाला हुआ जो शब्द है, वही शब्द जो हमारी संतान जो बोलेंगे, वही शब्द वैसा ही काम करेगा। हालेलुया। वो सब वैसा ही काम करेगा, वो बंद नहीं करेगा, वो काम करके ही आएगा। जैसे बंदूक से गोली निकलता है तो वो मिस हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के मुंह से जो शब्द है, वो शब्द को जब हम अपनाते हैं और वो शब्द को हम किसी बीमारी के ऊपर, किसी दुखी, किसी लाचारी के ऊपर, या फिर कोई भी हो, प्रार्थना में जब हम वचन की द्वारा उसे मांगते हैं तो उसमें क्या होता है? मजबूती होती है। हालेलुया। और जब मजबूती होती है तब हमारा विश्वास मजबूत होता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा परमेश्वर को हम खुश कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की वचन ने कहा है कि बिना विश्वास से तुम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। बिना विश्वास से परमेश्वर को तुम खुश नहीं कर सकते। अगर तुम्हारे अंदर तुम प्रार्थना कर रहे हो लेकिन विश्वास की कमी है, तो तुम्हारे अंदर वो फल तुम देख नहीं पाओगे। और अगर तुम्हारे अंदर विश्वास भी है और प्रार्थना भी है और आराधना भी है और वचन भी है, तो अब तुम्हारे अंदर एक मजबूत तैयार होगा। हालेलुया। हम एक वचन देखेंगे, मार्कुस उसका 13 और 31 पर। তো পৃথিবীর লোক হইবে, কিন্তু আমার বাক্যের লোক কখনো হইবে না। हालेलुया। आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, पर मेरा जो मुंह से शब्द निकाला है वो कभी इधर भी नहीं होगा, उधर भी नहीं होगा। जो कहा है वैसा ही होगा। हालेलुया। या उससे पहले जो हम लोग ईसाई उसका 55:11 में कहा है, जो मेरे मुंह से निकाला हुआ शब्द है वो सब आज भी वैसा ही काम करेगा हमारे जीवन में। जैसा परमेश्वर के मुंह से निकाला कि आकाश और पृथ्वी वो ठीक, वैसा ही आज हमारे जीवन में वैसा ही काम करेगा जब उस वचन को हमारे जीवन में हम लोग लेंगे। क्योंकि आत्मिक जहान में हमें लड़ाई करना है तो हमें वचन चाहिए। तो ठीक वैसे ही हमारा जो परमेश्वर का वचन है, उसे जब हम अपनाएंगे, उसे जब हम जीवन में बांट लेते जाएंगे, तब हम परमेश्वर की आत्मिक जहान में बहुत सारा योद्धा बन सकता है। हालेलुया। हालेलुया। और फिर आए यहाँ पे बात 13-31 पद में कि आकाश और पृथ्वी ढल जाएगा, पर मेरा कहना कभी इधर ना होगा ना उधर होगा। ये आकाश पृथ्वी भेंगे पड़े जाते पारे, समस्त नष्ट हो जाते पारे, किंतु আমার বাক্য যেটা বলেছে সেটাই হবে। हालेलुया। और अंधकार जो शक्ति है, अंधकार शक्ति क्या कर रहा है? इंसान को परमेश्वर से दूर रखने के लिए बहुत कुछ माध्यम यूज कर रहा है। अंधकार की शक्ति हो सकता है वो नशे की हो सकता है वो बीमारी की हो सकता है और दूसरे भी कई चीज, हर एक चीज जो इंसान को अंधा करके रखा है। हालेलुया। इंसान को अंधा करके रखा है और उससे परमेश्वर के सामने आने नहीं देता, परमेश्वर के वचनों को उनके जीवन में आने नहीं देता। बहुत लोग आते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनता है, घर जाते जाते वो लोग भूल जाता है मैंने क्या सुना आज। हालेलुया। लेकिन हमें भूलना नहीं है। जब यहाँ से हम निकलेंगे, घर में भी हम ध्यान लगा के कहेंगे, ध्यान लगा के उन्हीं बातों को हम फिर से याद करेंगे कि हम क्या क्या आज सुने थे वचन,
और उन वचनों में क्या समर्थ था, क्योंकि परमेश्वर ने जो वचन देता है वो हम सब के लिए देता है। और वही वचन को जब हम आत्मिक रूप में लेते हैं तब हम लोग जीवन में एक मजबूती परमेश्वर के साथ रिश्ते मिलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें परमेश्वर के साथ अगर चलना है तो उनके वचन को चलना, वचन में चलना चाहिए, वचन को जीवन में अपने अंदर लाना चाहिए और वचन के हिसाब से हर एक काम हमारे जीवन में करना चाहिए। तब हम क्या करेंगे, परमेश्वर के साथ एक रास्ता बनाएंगे। यूहन्ना उसका 1:14 जो होता 1:14 আর সেই বাক্য মাংসে মূর্তিমান হইলেন এবং আমাদের মধ্যে প্রবাস করিলেন, আর আমরা তাহার মহিমা দেখিলাম, যেমন পিতা হইতে আগত এক জাতের মহিমা, তিনি অনুগ্রহে ও সত্যে পূর্ণ। हालेलुया। हिंदी में से कोई पाठ कीजिए। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। हालेलुया। पहले हम लोग यूहन्ना 1 में अगर देखेंगे वहां पे लिखा है कि परमेश्वर, यूहन्ना 1 में पढ़िए कोई। यदि मैं वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। वही वचन देहधारी हुआ अर्थात इंसान बना, और इंसान परमेश्वर की आत्मा से बना, और उनके अंदर जो आत्मा थी और उनके अंदर जो आत्मा थी वो परमेश्वर की था और परमेश्वर की वचन से वो बना हुआ था। हालेलुया। और वही आत्मा में आया और देवधारी हुआ और वही वचन के अंदर रहने लगा और हमारे बीच में रहने लगा। आज भी वही वचन हमारे बीच में दिया जाता है, और वही वचन को जब हमारे जीवन में लेते हैं तो हम लोग भी परमेश्वर के साथ देवधारी होने का योग बन जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज भी यहाँ पे कह रहा वही वचन देवधारी हुआ। आज अगर हम परमेश्वर के वचन अपने जीवन में लेते हैं तो परमेश्वर के साथ हम लोग जुड़ जाते हैं, और जैसे यीशु मसीह पिता के साथ जुड़ गए थे वैसे ही आज भी अगर हम लोग परमेश्वर के वचन में हमारे जीवन को भर लेते हैं तो परमेश्वर के साथ हम लोग जुड़ जाते हैं, और परमेश्वर के साथ जब जुड़ जाते हैं तब ईश्वर के साथ हम जुड़ जाते हैं। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर ने कहा वही वचन देवदारी हुआ, अर्थात वचन जो था वचन इंसान का रूप लिया और इंसान बन के हमारे बीच में रहने लगा, और वही वचन पिता और पुत्र में एक साथ था। हालेलुया। और पिता का महिमा वो हमेशा करने लगा। हालेलुया। ठीक वैसे ही आज भी अगर हम लोग वचन को हमारे जीवन में लेंगे तो परमेश्वर के हमारे जीवन में लेंगे। अगर वचन को हमारे जीवन में जितने भरते जाएंगे परमेश्वर हमारे जीवन में उतना ही आता जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। ठीक वैसे ही वचन के पास आओ, वचन को सुनो और वचन की तरह तुम देवधारी हो जाओ। हालेलुया। हर परमेश्वर की संतान लोग जो होता है जैसे ही मुंह से कहता है वैसा ही होता है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो देवधारी में बदल चुका है, उनके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास चुका है, इसीलिए उनके जीवन में ऐसा होने लगा। उन्होंने कहा मैं अंतिम दिन में अपने आत्मा हर एक संतान के ऊपर उतार दूंगा। वैसा ही चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अंतिम दिनों में मैं अपने हर एक संतान के ऊपर अपनी आत्मा को डाल दूंगा, और वैसा ही होगा। तो हमारे जीवन में जो आराधना है, प्रार्थना है, वचन है, इसमें हम लोगों को परमेश्वर के साथ जोड़ देते हैं।
जैसे एक इलेक्ट्रिक तार अगर हमारे घर में है और उसको मेन पॉइंट से नहीं जुड़ा तो ये इलेक्ट्रिक कुछ भी काम नहीं है। और अगर उस इलेक्ट्रिक तार को मेन पॉइंट से जुड़ दिया तो उनमें पावर आ जाता है। ठीक वैसे ही परमेश्वर के वचन के साथ जब हम जुड़ जाते हैं तब हमारे अंदर एक पावर आ जाता है, समर्थ आ जाता है परमेश्वर की। और इब्रानिया उसका 11 और 6 पद, इब्रानिया उसका 11 और 6 पद। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। बांग्ला में कोई? কিন্তু বিনা বিশ্বাসে প্রীতির পাত্র হওয়া কাহারও সাধ্য নয়, কারণ যে ব্যক্তি ঈশ্বরের নিকটে উপস্থিত হয় তাহার ইহা বিশ্বাস করা আবশ্যক যে ঈশ্বর আছেন এবং যাহারা তাহার অন্বেষণ করে তিনি তাহাদের পুরস্কার দাতা। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन जो कह रहा है यहाँ पे सब अगर तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं है तो तुम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते, अर्थात परमेश्वर को तुम नहीं पाओगे। और अगर तुम्हारे अंदर विश्वास है तो तुम परमेश्वर को पाओगे। তুমি তাকে কখনো বিশ্বাস ছাড়া তাকে তোমার জীবনে লাগু হতে পারবে না। আর যদি তোমার জীবনে বিশ্বাস থাকে আর তুমি প্রার্থনার মধ্যে যা কিছু চেয়েছো সন্দেহ যদি না করেছো তাহলে তোমার জীবনে তাই ঘটবে। হালেলুয়া। আর যদি আমি বিশ্বাস করলাম যে এই মানুষটাকে ডাক্তারে তো জবাব দিয়ে দিয়েছে, এ মারা যাবে কিছুদিনের মধ্য দিয়ে, তাহলে আমি এর উপর প্রার্থনা করে কি হবে? তাহলে আমার এর উপরে প্রার্থনা করে কি হবে? কিন্তু ঈশ্বর বলছে যে তুমি যদি प्रार्थना करो और संदेह ना करो तार जीवन में ताई घटবে। यहाँ पे परमेश्वर ने कहा कुछ भी तुम मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाए। कुछ भी प्रार्थना में तुम जो कुछ भी मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हमारा करण पास्टर जब केरला में भर्ती था तो डॉक्टर ने कह दिया ये 1 घंटा की अंदर ये मर जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटा के अंदर ये मर जाएगा। जो इसको खिलाना चाहता है खिलाओ, जो इससे मिलना चाहता है मिल लो, क्योंकि इनके पास 1.5 घंटा समय है, ये मर जाएगा। लेकिन वहां पे एक परमेश्वर की दास था, उन्होंने आके डॉक्टर ने उसको कहा कि मर जाएगा, वही बात उस परमेश्वर की दास की कान में आया और परमेश्वर की दास विश्वास से आया और उस करण मास्टर के कान में आके कहा तुम नहीं मरोगे। हालेलुया। और ये बात 2016 का था। 2016 में जब उसका ऑपरेशन हुआ, हार्ट ऑपरेशन, और उसमें देखा डॉक्टर के ये मर जाएगा और नहीं बचेगा, ये इसके पास 2 घंटा है, इससे ज्यादा नहीं है, ये मर सकता है कभी भी। लेकिन परमेश्वर की दास ने आके उनके कान में कहा तुम नहीं मरोगे, और वैसा ही होने लगा। वो मरा नहीं बल्कि 2023 तक वो हमारे बीच में रहने लगा और उनकी तरफ बहुत सारा नया जीवन पाया। हालेलुया। और परमेश्वर के राज्य के बारे में वो बताने लगा कि मन फिरा वो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रास्ता है, और वैसा ही आज उनकी धारा बहुत लोग नया जीवन पाया। यहाँ पे जो ये घर बना है, उन्होंने आके यहाँ पे प्रार्थना किया, अपनी गांठ को पकड़ा और माटी को खुदा। वही पास्टर हमारे बीच में आके, जो मास्टर को डॉक्टर ने कह दिया कि तुम 1 घंटा मरने वाले, 1 घंटा से 1.5 घंटा में मरने वाले हो, लेकिन वो फेल हो चुका। हालेलुया। डॉक्टर अपने डॉक्टर हिसाब से बोलता है, लेकिन परमेश्वर कहा कि मैंने जो काम किया मेरे संतान भी वही काम करेगा। अगर तुम विश्वास करो और संदेह ना करो तुम्हारे जीवन में वैसा ही होगा। अपने मुंह से क्या बोलते हैं इसके ऊपर हमें ध्यान देने की जरूरत है। क्या देने की जरूरत है? ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि हमारे मुंह से मृत्यु भी है और जीवन भी है।
बाइबल कहता है तुम्हारे मुंह में मृत्यु भी है और जीवन भी है, तुम क्या बोल रहे हो उसमें तुम्हारे अधीन है। परमेश्वर ने कहा मैं अपने संतानों को अपने स्वरूप में बनाया हूं, अपने जैसे बनाया हूं, अपने सामर्थ्य में बनाया हूं, और तुम्हें पृथ्वी में हर एक चीजों में क्या नो वो अधिकार हो दिया। हालेलुया। तो हम पृथ्वी में रह के जो मुंह से बोलेंगे वो सही हमारे जीवन में होने लगता है। और परमेश्वर का जो मंदिर है वो हम लोग हैं, और इनमें परमेश्वर की आत्मा आते हैं और उनमें रहने लगे, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और उनके खोज करने वाला आत्मा और सच्चाई से करे। तो परमेश्वर जब आत्मा है तो हमें जो मंदिर है उसका जो ये मंदिर है इस आत्मा में वो परमेश्वर की आत्मा बसता है। हालेलुया। और ये आत्मा ही परमेश्वर के साथ हम बातें कर सकते हैं, परमेश्वर के साथ हम बातें कर सकते हैं, प्रार्थना के माध्यम से, वचन के माध्यम से परमेश्वर के साथ हम बातें कर सकता है, क्योंकि ये उसका मंदिर है और उसका आत्मा उनमें दिया हुआ है, और ये आत्मा परमेश्वर के साथ हमें चलाएगा। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा से हम बातें करेंगे। हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे, परमेश्वर के मंदिर को हम साफ रखेंगे, पवित्र परमेश्वर के मंदिर को अपने वचनों से सजाएंगे, तो दूल्हा आएगा दुल्हन को लेने के लिए। हालेलुया। क्योंकि हमें सजना किसमें है? परमेश्वर के वचन में सजना है, और जब परमेश्वर के वचन में हम सजेंगे अपने आप को, तब दूल्हा आएगा, ये तैयार है इसे ले जाने के लिए। तो ईश्वर वाक्य हमारे प्रत्येक के आशीर्वाद